Hello and welcome to my new lecture. In this lecture, we will be discussing complex matrices. The numbers which involve imaginary part real along with their real part are known as complex numbers, and a matrix involving uh, real and imaginary parts of a number or complex numbers is known as a complex matrix, right? So we should be knowing what a complex matrix is. A matrix which involves complex numbers, and then we would be conjugate of a complex matrix. When we change the imaginary part, sign of the imaginary part of a complex number, that is known as its conjugate. Let's say we have uh, a plus iota b, it's, let's say this is a z, and the z conjugate would be a minus iota b. When you replace the imaginary part, the sign of the imaginary part, say it is positive, it would be negative, it is negative, it is positive, just the imaginary part of your number, that is known as the conjugate. Similarly, when we talk about a matrix, then simply replacing its imaginary parts is known as its, let's say if it is a matrix, A is 3 plus 4 iota 2 uh, iota and 3, then A conjugate would be 3 minus 4 iota, 2 remains the same, iota would be minus iota, and 3 remains the same. So the real part remains the same while the imaginary part changes its sign in the case of a uh, conjugate. Now there are some properties related with these conjugates. Say a conjugate of a matrix is equal to that matrix, and a plus b whole conjugate is equals to a conjugate plus b conjugate. Similarly, k is some scalar number into a conjugate would be equals to k conjugate a conjugate. This is equal, and uh, likewise a conjugate a b whole conjugate is equals to a conjugate and b conjugate, right? All these are different conjugate properties that could be used. Now, we should know about the conjugate of a transpose of a matrix. Transpose of a conjugate of matrix, right? तो जब हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, पहले हम कॉन्जुगेट लेंगे और फिर हम उसका ट्रांसपोज लेंगे. ट्रांसपोज से क्या मुराद होती है? ट्रांसपोज से ये मुराद होती है जब हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देते हैं, तो उसे हम ट्रांसपोज कहते हैं. और एक कम्प्लेक्स मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है, हम उसे ए ऑफ थीटा या ए ऑफ स्टेरिक से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और इससे क्या मुराद होती है, पहले आपने उस मैट्रिक्स का कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है और फिर उसका ट्रांसपोज ले लेना है. तो ये क्या कहलाएगा? दिस वुड बी नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स. लेट्स से अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, A matrix is given by 2 plus 3 iota, 1 minus 2 iota,
2 plus 4 iota and 3 minus 4 iota, 4 plus 3 iota and 2 minus 6 iota and 5 plus 6 iota and 3. First we would take its uh, conjugate, right? Its conjugate would be 2 minus 3 iota, 1 plus 2 iota and 2 minus 4 iota, 3 plus 4 iota, 4 minus 3 iota and 2 plus 6 iota, 5, 5 minus 6 iota and this would be 3. So a conjugate transpose, which is a theta, that would be a conjugate transpose would be changing the rows into columns. 2 minus 3 iota, 1 plus 2 iota and 2 minus 4 iota. Similarly 3 plus 4 iota, 4 minus 3 iota and 2 plus 6 iota. Similarly 5 minus 6 iota and 3. तो इस तरह से हम जो है उसका ट्रांसपोज जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उससे आगे बढ़ते हैं, हम जो है डिस्कस करते हैं कि एक हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है और उसके रूट्स एक्सेट्रा क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। इसमें हम आगे हार्मिशियन और स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हार्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। हार्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। अगर आप जो है एक मैट्रिक्स है विच इज़ ए इज इक्वल टू ए आई जे, इसके एलिमेंट्स हैं, तो अगर ए आई जे का अगर आप जो है वो कॉन्जुगेट लें, राइट, मीन्स कि आप उसे ए जे आई से चेंज कर दें, ए जे आई से सॉरी ए जे आई से चेंज कर दें, और अगर वो उसी के इक्वल आ जाए तो हम जो है उसे क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को हार्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। आप इसको यूँ समझ लें कि अगर आप कम्प्लेक्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ठीक है, उसका आप जो है वो तो वो अगर वही मैट्रिक्स आ जाए तो जो है आपके पास उसके हम क्या कहेंगे, हार्मिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लेट्स से ये मैट्रिक्स है 2 3 प्लस 4 आयोटा, 3 माइनस 4 आयोटा एंड 1। आप इसके जब कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लेंगे, पहले इसका कॉन्जुगेट लेते हैं हम, तो कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा, 2 3 माइनस 4 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा और 1। अब हम जब इसके ट्रांसपोज लेंगे तो इट वुड बी 2 3 माइनस 4 आयोटा, राइट, और 3 प्लस 4 आयोटा एंड 1। सो इसमें आप देखें कि वो इसी के इक्वल आ रहे हैं, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, दिस वुड बी ए अवर हार्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट इज कि हार्मिशियन मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि हार्मिशियन मैट्रिक्स के रूट्स किस तरह के होते हैं। थ्योरम है इससे रिलेटेड, हम हार्मिशियन मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरम जो इससे रिलेटेड है वो ये है
कि the characteristic roots of a Hermitian मैट्रिक्स, और हर्मिशियन मैट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए क्या होती है। हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑल रियल, कि तमाम रूट्स जो होते हैं वो हर्मिशियन मैट्रिक्स के क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो अगर आप उन रूट्स को निकालेंगे तो वो आपके पास जो है वो आ जाएंगे, तो आप इजीली उसे कंप्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम जो बात करेंगे वो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन, अगर हम एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेके ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक्स जो है कम्प्लेक्स मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें और वो -a के इक्वल आ जाए, तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो और अब हम इसके रूट्स के हवाले से भी देख लेते हैं कि जो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो रूट्स होते हैं इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास। The characteristic roots of a skew Hermitian matrix is either zero, या तो वो ज़ीरो होते हैं, राइट, इज इधर ज़ीरो और प्योरली एन इमेजिनरी नंबर, या तो वो जो होते हैं वो आपके पास ज़ीरो होते हैं, या जो है प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है। पीरियोडिक मैट्रिक्स, अगर आपके पास सपोज जो है एक मैट्रिक्स ए है और ए की कोई k+1 जो है वो ए के इक्वल आ जाता है, जबकि k जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर k इज लीस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर, देन k इज पीरियड। तो k उसका क्या कहलाएगा, पीरियड कहलाएगा। सपोज a4 जो है वो a के इक्वल आ जाता है, तो हम लिख सकते हैं कि a3+1 इज इक्वल टू a, तो k जो क्या हो जाएगा, इसका पीरियड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह जो है हम ये कह सकते हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अगर किसी कम्प्लेक्स मैट्रिक्स में ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल आ जाए, तो उस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइगन वैल्यू जो होती हैं, आई होप आपको आइगन वैल्यूज निकालना आती हैं। आइगन वैल्यूज ऑफ एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट, और इधर ज़ीरो, या तो वो ज़ीरो होती हैं और यूनिटी। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की या तो जो है वो आइगन वैल्यूज जो होती हैं या तो वो ज़ीरो होती हैं, या जो है वो
तमाम जो वैल्यूज़ होती हैं वो यूनिटी होती हैं। इसी तरह हम बात करते हैं यूनिटी मैट्रिक्स की, कि यूनिटी मैट्रिक्स क्या होती है। यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स जो है एक ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसमें अगर आप एक जो है एक कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, अगर आप उसका ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज को हम ए थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ए डॉट उसका ट्रांसपोज ए डॉट ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज डॉट ए एंड इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह की स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, देन द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज यूनिटरी, राइट। तो ए जो है वो क्या कहलाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अब हम जो है वो थोड़ा कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, जो है जिससे हमें एक तो हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन से रिलेटेड एग्जांपल को देख लेते हैं, और फिर जो है हम उनके रूट्स और उस हवाले से थोड़ी जो है ना वो डिस्कशन कर लेते हैं कि कैसे जो है उनके रूट्स जो हैं वो रियल होंगे या उनको हम देख लेते हैं। तो हम कोई मैट्रिक्स एक कंसिडर करते हैं, और फिर हम उससे जो है उसके रूट्स निकालते हैं, देन सी जो है कि उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। लेट्स से हमने एक मैट्रिक्स ली थी, एक मैट्रिक्स हमने ली थी, अगर आपको याद हो तो हर्मिशियन मैट्रिक्स हमने ली थी। सिंपल सी ये थी, ए इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, और सॉरी 2 3 प्लस 4 आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा एंड 1, राइट। तो हम a माइनस लेमडा आई को ज़ीरो के ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो उससे हम जो है इस इक्वेशन के रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम पहले a माइनस लेमडा आई करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस लेमडा, राइट, 3 प्लस 4 आयोटा एंड 3 माइनस 4 आयोटा और 1 माइनस लेमडा, इट शुड बी डिटर्मिनेंट, राइट। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा, राइट, और माइनस 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 iota, right? It would be 2 minus 2 lambda minus lambda and plus lambda square. It would be 3 square 9 and minus 16 iota square. That would be plus 16, and it would be lambda square minus 3 lambda plus 2 and minus 16 plus 9 25. It would be lambda square minus 3 lambda minus 23. So if we find its roots, then the roots will come out to be you can find its roots by
using the quadratic formula. So according to theorem that we used over here, the characteristic roots of a Hermitian matrix are all real. तो जब आप इनके रूट्स निकालेंगे तो वो सारे रूट्स आपके पास जो है वो रियल निकलने चाहिए। तो आप इसे करके भी देख लें, तो ये इसमें a जो है वो 1 हो गया, b जो है -3 है और c -23 है। तो जब आप इन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट वुड बी -b +3 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्केयर वुड बी 9 -4 इंटू 1 इंटू -23 ओवर 2। सो ये अगर आप देखें तो ये एक पॉजिटिव नंबर बन रहा है। तो इससे ये प्रूफ हो रहा है कि जो रूट्स होते हैं वो इसके क्या होते हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो है वो रियल होते हैं। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लें और हम फाइंड आउट करना चाहें, जो हमने यूनिटी मैट्रिक्स अगर हम किसी को प्रूव करना चाहते हैं तो हम उसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक मैट्रिक्स लेते हैं और उससे फिर मल्टीप्लाई करके उसे यूनिटी मैट्रिक्स जो है वो प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हम इस तरह की एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ए जो है वो है मेरे पास 1/√3, राइट, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा एंड -1, राइट। अगर ये यूनिटी मैट्रिक्स है तो इसका पहले मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो इट्स कॉन्जुगेट वुड बी 1/√3, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एंड -1, एंड इट्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज that is equals to its conjugate that is equals to its transpose would be 1/√3. It would be 1 and 1 plus iota and 1 minus iota and -1. तो ये मेरे पास जो है वो बन जाएगा। अब मैं a थीटा को a से मल्टीप्लाई करूं तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। अब मैं a थीटा को ए से या ए को ए थीटा से मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स द सेम थिंग, बिकॉज ए थीटा इंटू ए और ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आई इन केस ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ए थीटा इज 1/√3, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा एंड -1। सिमिलरली ए इज 1/√3, 1 plus iota, 1 minus iota and -1. This 1/√3 into 1/√3 would be 1/3। तो ये मेरे पास 1/3 बन जाएगा, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 1 + 1 + 1, राइट। तो इसी तरह जो है वो, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 के इक्वल होता है, तो ये जो है इन सब को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो इट वुड बी 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा, राइट, एंड इट वुड बी 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड इट वुड बी 1 + 1 + 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या बन गया, 1/3 1 0 0 1। तो ये क्या है, आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यही हमने कहा था कि यूनिटी मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि आप ए थीटा ए से मल्टीप्लाई करें या ए डॉट ए थीटा आई के इक्वल होता है। तो ये कुछ जो है वो चीज़ें हैं जो हमने कम्प्लेक्स मैट्रिसेस से रिलेटेड देखनी थी कि कम्प्लेक्स मैट्रिसेस क्या होती हैं, उसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है और उनके रूट्स क्या होते हैं। इसी तरह फिर हमने देखा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, और जो है हमने एंड पे यूनिटी मैट्रिक्स देखा, और एक यूनिटी मैट्रिक्स कैसे जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं, हमने ये देखा और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स की। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।